of this unit. In this unit, we are going to work upon styles in a document, and the software which we will be using is openoffice.org. According to the new syllabus prescribed by the CBSE, we have a particular topic, create and apply styles in a document, and these are the topics which we will cover today in theory and as well as practical. In the practical, we have list, style, categories, select the style from the styles and formatting window. Basically, we will be working on styles in a document. In order to work on this, we need OpenOffice software which can be downloaded from www.openoffice.org. This is our software. When you open it for the first time, it will look like this. Here we are working on documentation part, so we have to click on the text document. So the window of text will open like this, and these are the parts of the window. At the top, you can see the title bar of the window. It is written OpenOffice Writer. So here it is Untitled 1. Written as file has not been saved, and by default the name is Untitled 1. This is the logo of the OpenOffice Writer. Then we have the menu bar with different options. Then we have standard formatting tools bar with different options for formatting, cut, copy, paste, print, so many other options. And then we have the formatting toolbar for formatting of the text or the paragraph, whatever we write in the document. So basically, what is digital documentation is that when we write anything electronically, that is letter, paragraph or any other text, that is known as digital documentation. The process of writing this electronically is known as digital documentation. So let us understand what is style. A style is a set of formats that you can apply to the selected text, pages, frames and other elements in your document to quickly change their appearance. आप कभी भी जब डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्क करते हैं, आपको अगर किसी भी टेक्स्ट का साइज चेंज करना है या फॉन्ट चेंज करना है तो फर्स्ट सिलेक्ट इट एंड चेंज इट. अलग अलग टेक्स्ट के लिए आप अलग अलग सिलेक्ट करते हैं और चेंज करते हैं. लेकिन स्टाइल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर साइज़ दिया, एक पर्टिकुलर फॉन्ट दिया, कुछ और प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया. अब आप ये चाहते हैं कि वो बार बार वही प्रॉपर्टीज़ मुझे दूसरे टेक्स्ट पे ना लगाना पड़े. मेरे पास एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो, उसको सिलेक्ट करें और वो मेरे चेंजेस जो पहले किए थे, टेक्स्ट रिलेटेड, फॉन्ट रिलेटेड, साइज़ रिलेटेड, वो सारे अपने आप हो जाए. तो उस केस में स्टाइल आपको हेल्प करेगा है, जिसके अंदर आप सिलेक्टेड टेक्स्ट, पेज, फ्रेम या किसी अदर एलिमेंट को अपने डॉक्यूमेंट में उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए आप चेंज कर देते हैं. दैट इज़ नोन एज अ स्टाइल. In openoffice.org, we have the following styles: paragraph styles, character styles, frame styles, page styles and list styles. So this is our software OpenOffice Writer. The first point is to create a style. First of all, we have to open this. So our first topic is list style categories. सबसे पहले हम देखेंगे स्टाइल ऑप्शन कहाँ रहता है, कौन कौन से डिफरेंट स्टाइल होते हैं और कैसे हम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं. Now here we have three statements: hello student 1, hello student 2 and hello student 3. स्टाइल का ऑप्शन आपके पास कहाँ रहता है? एक तो आपके पास ये फॉर्मेटिंग टूल बार पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है या आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है. फॉर दिस यू हैव अ शॉर्टकट की F11. या तो आप कीबोर्ड से F11 प्रेस कर सकते हो या फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो भी आपके पास स्टाइल आ जाएंगे. This box is known as Style and Formatting dialog box. Other option is to click on the Format menu and choose the option Style and Formatting. So we have three options. One, we have the shortcut key F11. One is from the menu bar and one is the icon on the formatting toolbar. Now we have the Style and Formatting dialog box.
लेट अस अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट इज द पैराग्राफ स्टाइल. ये जो आपको नाम दिख रहे हैं ये सब पैराग्राफ स्टाइल है. सेकेंड इज द कैरेक्टर स्टाइल, दिस वन. थर्ड इज द फ्रेम स्टाइल. फोर्थ इज द पेज स्टाइल एंड फिफ्थ इज द लिस्ट स्टाइल. जिस भी स्टाइल के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे वो स्टाइल आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा. फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड डबल क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड स्टाइल. यहाँ पे आपकी दो चीज़ें हो रही है. वन इज फिल इन फॉर्मेट मोड एंड न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन. लेट अस लर्न अबाउट दिस. मान लीजिए आई हैव सिलेक्टेड दिस हेलो स्टूडेंट 1 और ये सारे आपके नॉर्मल स्टाइल हैं. सपोज मैंने कंटेंट 1 पे डबल क्लिक किया और कंटेंट 10 पे डबल क्लिक किया. अब आपने देखा जब आपने कंटेंट 10 पे क्लिक किया तो ये आपका सेंटर में आ गया. अब हम कुछ और करके देखते हैं. सपोज़ हमने ड्राइंग पे डबल क्लिक किया तो आप यहाँ देख रहे हो फॉन्ट भी चेंज हो गया है. अब हम कुछ और करके देखते हैं. हो सकता है जिसमें इसका साइज़ भी चेंज हो जाए. हमें यहाँ हेडिंग 1 लिया. यहाँ पे जो इसका साइज़ है दैट इज़ ऑल्सो चेंज्ड. फॉन्ट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड. ये चेंजेस आप यहाँ से भी देख सकते हैं. हेडिंग 1 एरियल 16.1 और ये बोल्ड है. सपोज़ हमने हेडिंग 5 चूज़ किया. सो आप यहाँ देख सकते हैं हेडिंग 5 एरियल साइज इज़ चेंज टू 11.8. इस तरह से आप कोई भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. डबल क्लिक इस करके आप जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो शो हो जाएंगे. सपोज़ हमने लिया फूटर. फूटर के अंदर आ रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन. इसका साइज़ है 12. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ दिस कि आप स्टाइल का ऑप्शन कहाँ से लेते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करते हैं. इसके बाद आता है यूज़ फिल फॉर्मेट टू अप्लाई अ स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली. अभी हमने नॉर्मल मेन्यू से देखा. अभी हम देखेंगे फिल फॉर्मेट जो अभी हमने पढ़ा है. आइकॉन देखा है. इसके हेल्प से हम डिफरेंट एरियाज पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे वी हैव फिल फॉर्मेट मोड. तो आपको इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप इसमें से कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया हेडिंग 3. अब हम देखते हैं हेडिंग 3 का स्टाइल क्या है. सबसे पहले हेलो स्टूडेंट्स 3 को सेलेक्ट किया और हेडिंग 3 पे क्लिक किया. अब देखोगे तो इस तरह से आपका जो फॉन्ट है वो एरियल साइज इज़ 14 और बोल्ड इफेक्ट है और लेफ़्ट अलाइन है. अब हम ये चाहते हैं कि ये स्टाइल हम दूसरे पार्ट पे में कहीं और बार बार हम यूज़ करें. यूज़ करने के लिए डबल क्लिक करें. उसके बजाय हम चाहते हैं कि एक बार कोई ऐसा टूल हो जिसको क्लिक करके और उसको बार बार टेक्स्ट के ऊपर मूव करते जाए और चेंजेस हो जाए. जैसे कि आपका फॉर्मेट पेंटर होता है उसी तरह से हमारे यहाँ पे फिल फॉर्मेट है. तो हमने फिल फॉर्मेट पे क्लिक किया और इसे जब हम टेक्स्ट एरिया पे लेके आते हैं तो ये पेंट बकेट के फॉर्म में चेंज हो रहा है. कौन सा इफ़ेक्ट सिलेक्टेड है? हेडिंग 3. सो इसको मैं चाहूँ तो IT402 तो इसको मैं चाहूँ तो IT402 पे मूव कर सकती हूँ. तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल इसके जैसा हो गया है. इसका यहाँ देखो फॉन्ट एरियल और साइज़ 14 हो गया. बोल्ड लेफ़्ट अलाइन भी हो गया. अब हम चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं. तो आप ये देख सकते हो
कि बार बार यहाँ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मर्ज़ी और जहाँ भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना है वो हम ऐसे कर सकते हैं। सिर्फ एक बार आपको अपना स्टाइल को सिलेक्ट करना और फिर फॉर्मेट मोड लेना है, और जहाँ पे भी चाहे आप चेंजेस करना चाहते हो वहाँ आपको इनको मूव करना है और ये चेंजेस को अप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो गया फिल फॉर्मेट मोड। इस इफ़ेक्ट को आपको ऑफ करना है। इस पे आप दोबारा क्लिक कर दीजिए और आपका कर्सर आई शेप में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है क्रिएट एंड अपडेट न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। इसमें हमने क्या करना है, इसमें अपने आप से न्यू स्टाइल क्रिएट करना है और उसे अपडेट करना है। तो यहाँ पे हमारा हेलो स्टूडेंट 2 सिलेक्टेड है। वी हैव गॉन टू द फॉर्मेटिंग टूल बार और यहाँ पे से हमने कोई भी एक फॉन्ट ले लिया। आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। सपोज़ हमने यहाँ से ले लिया, इसको हम फिर से सिलेक्ट करते हैं, साइज़ हम चेंज करते हैं 28। बोल्ड और इटैलिक्स करते हैं। सो ये आपका एक स्टाइल क्रिएट हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये फॉन्ट और साइज़ के साथ ये स्टाइल हमें कहीं और भी यूज़ करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, न्यू स्टाइल्स फ्रॉम सिलेक्शन या जो सिलेक्ट किया हुआ है वहाँ से न्यू स्टाइल ले लेंगे। तो मैंने इसका नाम दे दिया सपोज़ XYZ और हमने कर दिया ओके। तो आप ये देखोगे जो आपने क्रिएट किया था वो XYZ यहाँ आ चुका है। आप यहाँ पे जाके इसे कर दोगे अपडेट स्टाइल। ये आपका इसके अंदर अपडेट या ऐड हो गया। अब मुझे ये स्टाइल किसी और टेक्स्ट पे लगाना है। सपोज़ हेलो स्टूडेंट 1 को सिलेक्ट किया, XYZ पे डबल क्लिक किया और ये टेक्स्ट भी आपका चेंज स्टूडेंट 1 को सिलेक्ट किया, XYZ पे डबल क्लिक किया और ये टेक्स्ट भी आपका चेंज हो गया। दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट इज load a style from a template or another document. In case what you have to do is you have to take some another document, use a style in that one and take the style in the first document. हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फाइल है अनटाइटल्ड 1। तो आप यहाँ से एक न्यू फाइल लेंगे क्योंकि हमने दूसरे टेम्पलेट के लिए फाइल में उस इफ़ेक्ट को लेना है। तो यहाँ पे हमने लिया न्यू अनटाइटल्ड फाइल 2 और यहाँ पे अगेन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग टूल बार सेम है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी हेलो स्टूडेंट्स। हमने फिर इसको सिलेक्ट किया और एक पर्टिकुलर फॉन्ट लिया। हमने सपोज़ ये फॉन्ट ले लिया और इसका साइज़ भी चेंज कर दिया 44 और बोल्ड कर दिया। अब आप यहाँ पे न्यू स्टाइल क्रिएट कर दो। पहले हमने XYZ दिया था, अब हम इसे देंगे DEF। अब इसका नाम हो गया DEF। आप देख रहे हो जिस डॉक्यूमेंट पे हम वर्क कर रहे हैं वहाँ तो ये अपडेट हो जाता है, लेकिन इस स्टाइल को अगर हमने पहले वाले या बाद वाले डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू सेव दिस फाइल। गो टू द फाइल ऑप्शन, गो टू द सेव ऑप्शन और यूज़ द शॉर्टकट की Ctrl+S। नाउ आई हैव टू सेव माई फाइल। कहीं सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट में हो रही है, तो मैं फाइल को नाम दे दूंगी स्टाइल और सेव टाइप या फाइल टाइप करूंगी .odt। क्लिक ऑन द सेव। अब हम अपने पहले वाले डॉक्यूमेंट में जाते हैं अनटाइटल्ड 1। उनको हमने सेव नहीं किया। यहाँ हमने हेलो स्टूडेंट 1 को सिलेक्ट किया। अब आप इस ऑप्शन पे जाएंगे और लोड स्टाइल आफ्टर clicking on load style, this type of window will open.
You have to open from file now. What was the name of this style? स्टाइल नेम था, यहाँ पे हमने स्टाइल लिखा और क्लिक किया ओपन। अब आपको याद होगा हमने जो इस केस में नाम दिया था स्टाइल वो था DEF। ये है DEF। तो आपको इस स्टाइल तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो आपने देखा कि टेक्स्ट कैसे चेंज हुआ। अब हम दोबारा दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके चेक करते हैं जो हमने सेव किया था। वहाँ उस डॉक्यूमेंट में हेलो स्टूडेंट्स का जो फॉन्ट साइज़ था वो अब हेलो स्टूडेंट्स 1 पे है। इसके बाद आपका आता है क्रिएट अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप और न्यू स्टाइल क्रिएट करना है। नेक्स्ट टेक्स्ट IT 402 सिलेक्ट किया हमने। इसको हमने एक पर्टिकुलर फॉन्ट दे दिया और एक साइज़ भी दे दिया और इफ़ेक्ट देते हैं बोल्ड और अंडरलाइन। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में आपको क्या करना है, जो आपने एक स्टाइल बनाया है उसको लेफ़्ट माउस बटन से इसको यहाँ पे क्लिक करना है और लेफ़्ट माउस बटन को होल्ड करके यहाँ पे ले आना है। इसमें जैसे आप यहाँ पे ले आओगे दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड आस्क फॉर क्रिएट स्टाइल। आपको स्टाइल का नाम देना है तो हमने दिया S6 और क्लिक किया ओके। अब मान लो जो ऊपर वाली टेक्स्ट है उसे भी मुझे सेम इफेक्ट में चेंज करना है। तो सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन S6। Now you can see both the text are having the same effect। तो स्टाइल का जितना भी था उतना हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिया।